Now I'm talking about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm around the nucleus. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ख़त्म होता है. इट इज़ कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. It divides the intercellular space into two distinct compartments. Number one, luminal compartment inner to the endoplasmic reticulum, and number two, extraluminal compartment outer to the ER, that is cytoplasm. Lumen means cavity. Lumen is filled with the fluid and contain many enzyme and other proteins. Two kinds of endoplasmic reticulum occurring in a cell are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has ribosome on its outer surface. It presents more in protein enzyme secreting cell. It is involved in the synthesis and transport of proteins. Smooth endoplasmic reticulum has no ribosome attached to it. Smooth endoplasmic reticulum is present more in the cell that synthesize lipid and sterols. It is involved in the synthesis of lipid and steroid hormone. तो जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा होता है. राइबोसोम इस वजह से कहलाता है रफ़. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है मेनली. जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते तो ये लिपिड और स्टेरॉयड और फैट की सिंथेसिस और हार्मोन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक तो ट्यूब्यूल, सेकेंड वन इज सिस्टर्नी एंड थर्ड वन इज़ वेसिकल. ट्यूब्यूल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सिस्टर्नी, और उनमें से जो बबल लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उन्हें हम वेसिकल कहते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्जी बॉडी. दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जी इन 1898. Camilio, they consist of many flat dish-shaped sac-like called cisternae, which are stacked parallel to one another in a concentric manner near the nucleus. They have a distinct convex, that is cis face or forming face, facing the nucleus, and the concave trans or maturing face facing the outer surface of the cell. तो कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था. गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. प्लांट के केस में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं क्योंकि वो अनडेवलप्ड होता है, उसमें सिस्टर्ने नहीं पाए जाते हैं, केवल ट्यूब्यूल और वेसिकल होते हैं. और इसका फंक्शन जो है हार्मोन्स एंजाइम बनाना, और स्पर्म के हेड को एक्रोसोम को ये बनाते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किसने डिस्कवर किया था इसके बारे में बात कर रहे हैं. पोर्टर ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम. Lysosomes are spherical or irregular single membranous bounded vesicle formed by the process of packaging in Golgi cisternae. Lysosomal vesicle contain a number of hydrolase like lipase, protease, carbohydrate, etc. They are optimally active at acidic pH. तो लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके अंदर होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम 40 से लेकर 200 तक, और एडवर्स कंडीशन में ये अपनी ही सेल को खा लेता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. लाइसोसोम कई तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लाइसोसोम्स, और मैच्योरेशन के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है. जिसमें बिल्कुल वेस्ट होता है वो टर्शियरी लाइसोसोम्स होते हैं. Now I am talking about vacuoles. Vacuole are membrane bound space in the cytoplasm. Single membrane bound of vacuoles is called tonoplast. वैक्यूल की कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल इतनी लार्ज होती है कि न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट होना होता है. इन केस ऑफ एनिमल्स या तो वैक्यूल बहुत छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है. Tonoplast of plant cell facilitate the transport of number of ions and other molecule into the vacuole against concentration gradient, and so their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Vacuoles are of many types. Number one, sap vacuole. They are vacuole of plant cell. They contain water, mineral, excretory products, etc. Second one, contractile vacuole. They are the vacuoles found in unicellular organ like amoeba, paramecium.
दे हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो पैरामीशियम में ये बनती बिगड़ती रहती हैं अमीबा में, जैसे ही वो पानी उसके अंदर भरता है, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं अमीबा, पैरामीशियम पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, तो ये वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों एंड पे बनती है। और जब ये पानी से पूरी भर जाती है तो ये बाहर जाके फट जाती है, जिससे कि सेल में ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है, पीएच मेंटेन रहती है। थर्ड वन इज़ फूड वैक्यूल। They are also common in organisms like amoeba and paramecium. They are formed by engulfing the food material by phagocytosis and digestion occur within them. Now, तो प्लास्टिड्स जो हैं डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनली होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। दे आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स एंड कंटेन पिगमेंट्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर कलर एंड फंक्शन। Number 1, leucoplast. These are the colorless plastid, usually found in storage organs, tuber, fruit, rhizome, etc. that are mostly not exposed to sunlight. Their main function is to store nutrients like starch, that is amyloplast, protein, ureoplast and fat, ileoplast. तो ल्यूकोप्लास्ट मेनली फूड स्टोर करते हैं और अलग अलग तरीके के होते हैं। जो स्टार्च को स्टोर करता है उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, फैट वाले स्टोर करने वाले को इलियोप्लास्ट कहते हैं। Second type of plastid is chromoplast. They are colored plastid containing mainly the yellow and red and organic pigment, ऑरेंज पिगमेंट। ये कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, जैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है, सनफ्लावर में मिलता है। These are found in the petals of flower and skin of fruit. They attract insect for pollination and dispersal of fruit or seeds. Now I am talking about chloroplast. Chloroplasts are the green plastid containing mainly chlorophylls and some amount of carotene and xanthophyll. तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है। इट कंटेन्स ग्रेनम और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं थाइलाकॉइड एंड लैमेली। साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की लाइट एनर्जी को ट्रैप करके ये प्लांट अपना फूड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ग्रेनम में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को क्वांटासोम बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो ग्रेना में होती है एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का डीएनए है, इसलिए सेल के बाहर निकाले जाने पर ये कुछ देर तक जिंदा रहेंगे, इसलिए इनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज के नाम से जानते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। सेल डिवीज़न में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, उसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, वो इसी से बनता है और बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि उसी से क्रोमोसोम अटैच होता है तो सेल डिवाइड कर पाती हैं। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम डिवाइड होकर जा पाता है। Centrosome consists of a pair of centriole at right angle to each other, surrounded by an amorphous particular cytoplasm called centrosphere or kinoplasm. Centrioles form the basal body of cilia or flagella and form the spindle fiber for the spindle apparatus during cell division in animal cell. तो ये एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके सेंटर को हब बोलते हैं और इससे जो रेज निकलती हैं दे आर नोन एज एस्टर रेज, और एस्टर रेस से ही आगे चल के स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है मेटाफेज में। माइटोसिस और मियोसिस की सेल की एक स्टेज है मेटाफेज, उसमें यही स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। सेंट्रोसोम तो पूरे को कहते हैं और इसके हाफ को हम सेंट्रियोल बोलते हैं। सेल डिवीज़न में क्योंकि सेंट्रोसोम हाफ हो जाता है और अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाता है तो हाफ वाले पोर्शन को सेंट्रियोल बोला जाता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि जो गोल्जी बॉडी है प्लांट के केस में उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, क्योंकि उसमें टिब्यूल होता है, वेसिकल होते हैं लेकिन सिस्टर्नी नहीं होते हैं। टिब्यूल में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के टिब्यूल में हार्मोन एंजाइम वगैरह बनते हैं, सिस्टर्नी से पास आउट होते हैं और वेसिकल में फिल कर दिए जाते हैं। फिर ये पूरी सेल में घूमते रहते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ जाकर ही फट जाते हैं और उस सब्सटेंस को रिलीज़ कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
सेल